What would you reply if someone asks you about your current mood? You will say happy, sad, angry. But do you really think it is enough to describe your mood? How would you describe an extremely amazing vacation? As a happy one? But for how many times you will use the word happy? This word will lose its meaning. So instead of saying happy again and again, we can use another phrase. Hello, this is Rita Walia. Today I'm going to teach you 15 trending English phrases which will definitely help you to enhance your English speaking skills. So before starting this session, there's a request to all of you to subscribe this channel if not subscribed yet. And don't forget to hit the bell icon to get all the notifications my upcoming videos. So we have first phrase is on cloud 9, meaning feeling extremely happy, बहुत ज़्यादा खुश होना. When he finally proposed to her, he was on cloud 9. When he finally proposed to her, he was on cloud 9. Phrase number 2, under the weather. Under the weather. Under the weather means not feeling so well. जब तबीयत ठीक नहीं है, slightly sick rather than being seriously ill. बहुत ज़्यादा बीमार नहीं, बट थोड़ा सा मीन कि वेदर के कारण, या आप थोड़ा सा कह सकते हो कि अब उस दिन कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बट बहुत ज़्यादा बीमार नहीं. अंडर द वेदर. John feeling a bit under the weather tonight, so he won't be joining us for dinner. John feeling a bit under the weather tonight, so he won't be joining us for dinner. So phrase number 3 is fed up. Fed up. Feel very frustrated about something and no longer want to deal with it. Fed up होता है किसी चीज़ से उकता जाना और आप नहीं चाहते कि उस काम को और ज़्यादा लंबे समय तक किया जाए या उसके साथ कोई डील की जाए. You are completely fed up. I have had a terrible day at work. I'm feeling completely fed up. Next है makes your blood boil. Makes your blood boil. Phrase number 5. It causes you to feel anger. ये फ्रेज़ जो है तब यूज़ की जाती है जब आपको लग रहा है कि आप किसी कारण से बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ गया है. ठीक. एग्जाम्पल, नॉइजी, इनकन्सिडरेट नेबर्स रियली मेक माई ब्लड बॉयल. नॉइजी, इनकन्सिडरेट नेबर्स रियली मेक माई ब्लड बॉयल. सो फ्रेज नंबर 6 वी हैव फ्लाइंग हाई. फ्लाइंग हाई. फ्लाइंग हाई इज़ ऑल्सो मीन्स वेरी हैप्पी. जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो आप यूज़ कर सकते हो फ्लाइंग हाई. शी इज़ फ्लाइंग हाई आफ्टर द सक्सेसफुल इंटरव्यू. शी इज़ फ्लाइंग हाई आफ्टर द सक्सेसफुल इंटरव्यू. नेक्स्ट फ्रेज वी हैव pumped up. Pumped up. Phrase number 6 means very excited about something. किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना. She is pumped up for her first salary. Next phrase we have fool's paradise. Fool's paradise is phrase number 7. Fool's paradise meaning है a situation when someone is happy because they are ignoring a problem or fail to realize its existence. एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई तो खुश है. क्यों खुश है? क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहा है या फिर उसके होने पे, उसके एग्जिस्टेंस पे वो उसको समझ नहीं पा रहा है. फूल्स पैराडाइज. यू मस्ट बी इन अ फूल्स पैराडाइज इफ़ यू थिंक दैट इट विल रेन एट द टाइम ऑफ सच हॉट समर्स. क्लियर? नेक्स्ट फ्रेज वी हैव बी डाउन इन डम्प्स. बी डाउन इन डम्प्स. फ्रेज नंबर 8 मीनिंग टू फील अनहैप्पी और विदाउट होप. या तो बहुत ही अनहैप्पी फील करना या फिर कोई उम्मीद का ना होना. She is a bit down in the dumps because she has got to take her exams again. वो क्यों अनहैप्पी है? क्योंकि उसको फिर से अपने एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव फ्रेज नंबर 9 बी एट द एंड ऑफ योर रोप. बी एट द एंड ऑफ योर रोप मीनिंग to be very upset because you are no longer able to deal with a difficult situation.
बहुत ज़्यादा अपसेट हो क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, लंबे समय के लिए आप किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को डील करने के योग्य नहीं हो। साउंड्स लाइक यू आर एट द एंड ऑफ योर रोप, ऐसा लगता है कि तुम बहुत अपसेट हो गए। नेक्स्ट फ्रेज वी हैव ग्रीफ स्ट्रिकन। ग्रीफ स्ट्रिकन फ्रेज नंबर 10। ग्रीफ स्ट्रिकन मीन्स एक्सट्रीमली सैड, बहुत ज़्यादा उदास होना। आफ्टर हिज वाइफ died in a car accident, he was left grief stricken. Now next we have phrase number 11, bite someone's head off. Bite someone's head off. Meaning है to respond with anger to someone, किसी को बहुत गुस्से से जवाब देना। I asked him one simple question and he bit my head off. Phrase number 12, black mood. Meaning to be irritable, angry or depressed. To be irritable, angry or depressed. Example, she is scared to ask for the weekend trip as her mother is in a black mood today. उसको डर है आज वीकेंड ट्रिप के लिए पूछने के लिए बिकॉज उसकी मदर का मूड आज ठीक नहीं है, गुस्से में है। क्लियर? सो फ्रेज नंबर 13, ड्राइव अप द वॉल। ड्राइव अप द वॉल मीनिंग टू अनॉय और इरिटेट समवन। अनॉय और किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेट करना। हिज ट्यूनलेस सिंगिंग एंड ड्रमिंग ऑन द टेबल ड्राइव मी अप टू द वॉल। नेक्स्ट फ्रेज वी हैव फ्रेज नंबर 14, हैव और गेट और फील बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, or have butterflies in your stomach or get butterflies in your stomach. Okay, so feel butterflies in your stomach means to experience the anxiety generally before when you are going to do something. कुछ सपोज आप स्टेज के ऊपर कुछ स्पीच देने वाले हो, आज आपकी स्पीच है, ठीक है, और आज ही आपको बहुत ज़्यादा मीन कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो उस चीज़ से, वो एंजाइटी में हो, उस समय हम इस फ्रेज को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है इसमें, द ब्राइड हैड बटरफ्लाइज इन हर स्टमक एज शी गॉट रेडी टू वॉक डाउन द आइल। क्लियर? सो फ्रेज नंबर 15 वी हैव अफ्रेड ऑफ योर ओन शेडो। अफ्रेड ऑफ योर ओन शेडो मीन्स टू बी वेरी फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डर जाना। सो फ्राइटेंड यू वुड जंप इफ़ यू सॉ योर ओन शेडो इन द लाइट। आप इतना डर जाओ कि अपनी ही शेडो को देख के लाइट में आप जंप कर दो। समटाइम्स द पीपल हु अपीयर टू बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट आर एक्चुअली अफ्रेड ऑफ देयर ओन शेडो। कई बार क्या होता है, जो लोग ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वो असल में क्या होता है, एक्चुअली अफ्रेड ऑफ देयर ओन शेडो। वो अपनी ही शेडो से वो डर जाते हैं। क्लियर? सो वी हैव लर्नड 15 phrases. These 15 phrases will definitely help you out. Thank you so much.